नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Dear and respected viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear viewers, you are watching your favorite program Iqra, and I am your host Dr. Jameel Rathore with Quranic religious and exclusive program of ARY Digital, in which we teach our viewers how to recite Holy Quran with proper pronunciation and accurate accent. So as usual, that means according to the format of our program, first we shall give you the recitation of holy verses, and our today's program consists of verse number 18th and some part, that means the first part of the verse number 19th of Surah Al-Kahf of the 15th chapter of Al-Quran. And you are requested to listen to these verses attentively, patiently, silently and lovingly, so that God's blessings may be achieved. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم صدق الله العظيم. And now we proceed with its word by word recitation, that is by splitting the verse into words, and you are requested to repeat with me. وَتَحْسَبُهُمْ أيقاظا وهم رقود ونقلبهم
वनुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीनी ज़ातल यमीनी व ज़ातश शिमाल व ज़ातश शिमाल व कल्बुहुम बासितुन। व कल्बुहुम यहाँ पर मीम साकिन है, और जब भी मीम साकिन हो और उससे अगला हर्फ बा या फिर हर्फ मीम ही हो, तो दोनों सूरतों में हम गुन्ना करते हैं, आवाज़ को नाक में ले जाते हैं, नेजल साउंड को डोमिनेंट करते हुए फोनिकल साउंड के साथ हम पढ़ते हैं। लिहाजा मीम यहाँ पर साकिन है और हर्फ बा उसके बाद आ रहा है, इसलिए हम मीम पर साकिन भी करेंगे और गुन्ना भी करेंगे और इस तरह पढ़ेंगे। वकल्बुहुम बासितुन बासितुन ज़िग़ाइही। तौ पर तनवीन मौजूद है, और जब भी तनवीन हो या नून साकिन हो गुन्ना करते हैं, लेकिन अगर 6 हरूफ नून साकिन या तनवीन के बाद आ जाए तो गुन्ना नहीं करते, और वो हरूफ हैं हमजा हा, आइन हा, गैन खा, जिन्हें हरूफ हलकी कहा जाता है। चूँकि ये हलक से भी अदा होते हैं, लिहाजा जब भी ये हरूफ आ जाए तो गुन्ना नहीं करते। यहाँ पर तौ पर 2 पेश यानी तनवीन मौजूद है, लिहाजा अगला हर्फ हरूफ हलकी का नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर भी गुन्ना करेंगे। बासितुन ज़िग़ाइही बिलवसीद बिलवसीद लवित्तलअत अलैहिम अलैहिम लवल्लैत मिनहुम फिगारन वलमुलित फिगारन। रा पर जबर है, इसलिए इसको पुर करके थिक करके मोटा करके पढ़ेंगे। फिगारन वलमुलित मिनहुम रुअबा वकज़ालिक बअसनाहुम। यहाँ पर सा है, सा को हम सॉफ्ट करके अपने दोनों सामने के दांतों के बीच में दरमियान में जब हम अपनी जबान की टिप को लगाएंगे तो फिर सा अदा होता है। सा, अस, इस, उस। बअसनाहुम लियतसाअलू। मद्दे मुत्तसिल है, इसको हम 5 से 6 वाविल या हरकात के बराबर प्रोलॉन्ग करके पढ़ते हैं। लियतसाअलू बैनहुम क़ाल क़ाइलुम मिनहुम कम लबिस्थुम क़ालू लबिस्ना यौमन
أو بعض يوم أو بعض أو بعض يوم يوم قالوا ربكم ربكم أعلم بما لبثتم بما لبثتم. Dear viewers, now our second segment of program has completed and we are going to the third and final segment of our program. This is also very helpful, very informative, and in this particular session we proceed these verses written in Arabic calligraphic, as well as we are showing these verses on your television screen and transliterated by Romanized for those who are unfamiliar with Arabic alphabets as compared to English alphabets. And this exercise is followed by Urdu and English translation. So keep on watching this program and stay with us. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. In Roman, وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. In Urdu, और अगर तू देखे तो तू उन्हें बेदार ख्याल करेगा हालांकि वो सो रहे हैं, और हम उनकी करवट बदलते रहते हैं, कभी दाईं जानिब और कभी बाईं जानिब. In English, and thou wouldst have deemed them waking, though they were asleep, and we caused them to turn over to the right and the left. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. In Roman, وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. In Urdu, और उनका कुत्ता फैलाए बैठा है अपने दोनों बाजू उनकी दहलीज पर, अगर तू झांक कर उन्हें देखे तो उनसे मुंह फेर कर भाग खड़ा हो और तू भर जाए उनके मंजर को देखकर हैबत से. In English, and their dog stretching out his paws on the threshold, if thou hadst observed them closely, thou hadst assuredly turned away from them in flight, and hadst been filled with awe of them. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل
वकज़ालिक बअस्नाहुम लियतसाअलू बैनहुम क़ाल क़ाइलुम मिनहुम कम लबिस्थुम क़ाल क़ाइलुम मिनहुम कम लबिस्थुम इन उर्दू। और इसी तरह हमने उन्हें बेदार कर दिया ताकि वो एक दूसरे से आपस में पूछें। कहने लगा एक कहने वाला उनमें से कि तुम यहां कितनी मुद्दत ठहरे हो। In English, and in like manner we awakened them that they might question one another. A speaker from among them said, "How long have ye tarried?" قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. In Roman, قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم इन उर्दू बाज ने कहा हम ठहरे होंगे एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। दूसरों ने कहा तुम्हारा रब बेहतर जानता है जितनी मुद्दत तुम ठहरे हो। In English, they said, "We have tarried a day or some part of a day." Others said, "Your Lord best knoweth what ye have tarried." नाज़रीन किराम, हमारे सबक का वक्त अपने इख्ताम को पहुंचा। सूरह कहफ की इन आयात में अल्लाह तबारक व तआला अस्हाब कहफ का, बनी इसराइल के औलिया किराम का जिक्र फरमा रहा है कि जब वो गार में पनाह गुज़ी हुए, आराम फरमा हुए, अल्लाह ने उन पर नींद तारी की, तो रब्बे ज़ुल जलाल ने पिछली आयात में फरमाया था कि सूरज उनके दाएं और बाएं जानिब से कतरा कर गुजर जाया करता है, चाहे वो सूरज के तुलू का वक्त हो चाहे गुरूब का वक्त हो। और इन आयत में फरमाया जा रहा है वनुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीनी व ज़ातल शिमाल, कि हम उनको करवटें बदलते रहते हैं, कभी दाएं जानिब लिटा देते हैं कभी बाएं जानिब। ऐसा क्यों किया जा रहा है? इससे ये मालूम हो रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला के जो औलियाए किराम, अल्लाह के महबूबीन मुक़र्रबीन हुआ करते हैं, बज़ाहिर उन पर मौत तारी हो जाती है लेकिन हकीकत में वो जिंदा हुआ करते हैं। और ये जिंदा होने की निशानी है, आप जानते हैं कि एक ही पहलू अगर कोई सोया रहे तो यकीनी तौर पर वहाँ पर ब्लड पूलिंग होनी शुरू हो जाती है, खून जमना शुरू हो जाता है, और वहाँ पर खून जमते जमते बिल आखिर कीमोसिस हो जाती है, सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड डिस्टर्ब हो जाता है। लिहाजा रब्बे ज़ुल जलाल बड़ा हकीम है, बड़ा कदीर है, उसने उन मकामात पर जहाँ पर ब्लड की सर्कुलेशन हुआ करती है, मूवमेंट से ज़्यादा हुआ करती है, तो रब्बे ज़ुल जलाल ने कभी उन्हें दाएं लेटाया कभी बाएं उठाया, ताकि ना तो खून एक तरफ रहे ना दूसरी तरफ रहे, बल्कि सर्कुलेशन हर सूरत में बरकरार रहे और होती रहे। और हमें ये भी मालूम हुआ कि वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइही बिलवसीत, कुरान कहता है कि उनका कुत्ता उनके साथ था और उनकी दहलीज पर या उस गार के मुंह पर अपने पाँव को फैलाए हुए, अपने परों को फैलाए हुए वहां पर बैठा हुआ था। अब कुरान मजीद फुरकान हमीद में कुत्ते का जिक्र इस मकाम पर 3 मरतबा आया है, तो इससे मालूम हुआ कि कुत्ता उससे हम मस हो जाएं तो कराहियत हुआ करती है, लेकिन अगर वही कुत्ता, वही डॉग अगर अल्लाह के नेक बंदों का कुर्ब हासिल कर लेता है
तो वो कुत्ता औलिया किराम के साथ शामिल हो जाता है। और मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जहां असहाबे कहफ जन्नत में दाखिल होंगे तो उस सोहबत की बिना पर अल्लाह तबारक व तआला उस कुत्ते को भी जन्नत में दाखिल फरमा देगा। तो अगर हम औलिया किराम की सोहबत इख्तियार करेंगे, पंदो निसाए पर अमल करेंगे, अल्लाह के इनाम याफ्ता बंदों के रास्ते पर चलेंगे, तो मेरा ईमान है कि अल्लाह तबारक व तआला जब वो साथ जाएंगे तो हम जैसे गुनाहगार पीछे नहीं रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला उनके तसद्दुक़ व तवस्सुल से गुलामान मुस्तफ़ा की भी बख्शिश फरमा देगा। और ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह के नेक बंदे मरने के बाद अगर अपनी कब्रों में हुआ करते हैं और फिर वो जागते हैं तो वो कहते हैं कि कितनी देर हम रहे, कोई कहेगा 1 दिन, कोई कहेगा 2 दिन। ये नेक बंदों के लिए है, लेकिन वो लोग जो गुनाहगार हैं उनके लिए अज़ाब कब्र बड़ा भारी होगा, महशर का दिन बड़ा भारी होगा। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हमें सही मानों में कुरान की इन पंदो निसाए पर, इन एडवाइसेस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।